Let us now discuss the human brain and how does it make the basis of your behavior. So the adult brain weighs about 1.36 kg and contains around 100 billion neurons. The brain can be divided into three parts mainly: hindbrain, midbrain and forebrain. If you see the forebrain, it has two or three main parts: cerebrum, thalamus and hypothalamus. Then इसके just नीचे there is a small gland named pituitary gland. Then आपका मिड ब्रेन आता है. सी, ये जो आपका हाइंड ब्रेन है और ये जो आपका फोर ब्रेन है, दोनों के बीच में जो दोनों को अटैच कर रहा है ये पार्ट, दिस इज योर मिड ब्रेन. हाइंड ब्रेन इंक्लूड्स पॉन्स, मेड्यूला ऑब्लिंगेटा, सेरिबेलम. मेड्यूला ऑब्लिंगेटा बिल्कुल एंडिंग पार्ट होता है. यहीं से आपका ब्रेन, मेड्यूला की हेल्प से ही आपका ब्रेन अटैच होता है स्पाइनल कॉर्ड से. यहाँ आपकी इसके ऊपर पूरी सेरेब्रल कॉर्टेक्स होती है. Let us discuss all of these parts in detail. Firstly, the hindbrain. This part of brain has the following structures. Firstly, we have medulla oblongata. It is the lowest part of the brain that exists in continuation of the spinal cord. Its neural centers regulate some basic life supporting activities like breathing, heart rate and blood pressure. This is why it is also known as the vital center of the brain. It has some autonomic centers also. Then we have pons. Pons connects medulla to the midbrain. The nucleus of pons receive auditory signals relayed by our ears. It is also related to sleep mechanism, particularly dream related sleeping. The other nuclei in pons, they control respiratory movement and facial expression. सेरिबेलम आपके पॉस्चर और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है और कंट्रोल करता है. इट्स मेन फंक्शन इज कोऑर्डिनेशन ऑफ मस्कुलर मूवमेंट्स. आपकी बॉडी के जितने मस्कुलर मूवमेंट्स हैं उनको कोऑर्डिनेट करेगा. ये मोटर कमांड्स को रिसीव करता है और उनको कोऑर्डिनेट करता है टू द मसल्स. इट ऑल्सो स्टोर्स मेमोरी ऑफ मूवमेंट पैटर्न्स. जैसे कि साइकिल चलाने के लिए अगर कोई पर्टिकुलर मूवमेंट पैटर्न होता है या आप टाइप करते हो ना, तो कुछ टाइम बाद हमें रट जाता है, हम बिना देखे भी टाइप कर सकते हैं. वाई? बिकॉज मूवमेंट पैटर्न आपका, उसकी मेमोरी जो है वो कंट्रोल करता है आपका सेरेबेलम. मिड ब्रेन. द मिड ब्रेन इज रिलेटिवली स्मॉल इन साइज एंड इट कनेक्ट्स द हिंड ब्रेन विद द फोर ब्रेन. A few neural centers related to some special reflexes and visual and auditory sensations are found here. An important part of midbrain, which is the reticular activating system or RAS, is responsible for our arousal also, arousal after waking up. It makes us alert and active by regulating sensory inputs. It also helps us in selecting information from the environment. Then we have your forebrain. फोरब्रेन आपके कॉग्निटिव, इमोशनल एंड मोटर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है. इसके चार मेन पार्ट्स होते हैं. फर्स्टली वी हैव हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस आपके फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को रेगुलेट करता है, जो कि आपके इमोशनल और मोटिवेशनल बिहेवियर को में यूज़ होते हैं. यानी कि इमोशंस के टाइम पे जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उनको रेगुलेट करेगा. जब आप मोटिवेटेड फील करते हो उस टाइम पे आपकी बॉडी में जो भी चेंजेस होते हैं उनको रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस. It also regulates and controls the internal environment of the body and regulate the secretion of hormones from various endocrine glands. Now, अगर आपने endocrine glands के बारे में कभी भी पहले पता है तो you should know that hypothalamus controls the entire endocrine system. पिट्यूटरी ग्लैंड आपके सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है. इट इज़ जस्ट लाइक कि स्कूल में स्टूडेंट्स का ध्यान टीचर्स रखते हैं और टीचर्स का ध्यान प्रिंसिपल जो इंस्ट्रक्शंस टीचर्स को देगा, टीचर्स वही इंस्ट्रक्शंस, वही काम स्टूडेंट से करवा लेंगे. ठीक है. सो हाइपोथैलेमस इज योर प्रिंसिपल and pituitary is your teacher. All the other glands are the students. Thalamus.
Thalamus is like a relay station that receives all incoming sensory signals from sense organs and sends them to appropriate parts of the cortex for processing. It also receives all outgoing motor signals coming from the cortex and sends them to appropriate parts of our body. Then we have limbic system. Limbic system helps in maintaining internal homeostasis by regulating body temperature, blood pressure and blood sugar level. It includes two structures, हिप्पोकैम्पस एंड एमिगडेला. हिप्पोकैम्पस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में और एमिगडेला का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके इमोशनल बिहेवियर में. देन वी हैव सेरिब्रम. दिस पार्ट रेगुलेट्स ऑल higher levels of cognitive functions like attention, perception, learning, memory, language behavior, reasoning and problem solving. The cerebrum makes 2/3 of the total mass of the human brain. Its thickness varies from 1.5 mm to 4 mm, which covers the entire surface of the brain and contains neurons, neural nets and bundles of axons. The cerebrum is divided into two symmetrical halves. आपका जो cerebrum होता है वो दो parts में इस तरह से divided होता है called the cerebral hemisphere. So first is on the left side we have left hemisphere and on the right side we have right hemisphere. Although the two hemispheres appear identical, functionally one hemisphere usually dominates the others. For example, the left hemisphere usually controls language behavior. The right hemisphere is usually specialized to deal with images, spatial relationships and pattern recognition. These two hemispheres are connected by a white bundle of myelinated fibers called corpus callosum. तो दोनों हेमिस्फेयर्स के बीच में पतला सा फाइबर्स का बंडल होता है जिसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम, जो दोनों को अटैच करता है, दोनों ही हेमिस्फेयर्स को. एंड इट ऑल्सो कैरीज मैसेजेस बैक एंड फोर्थ बिटवीन द हेमिस्फेयर्स, यानी कि लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है. इट इज़ करेक्ट दैट देयर इज सम लोकलाइजेशन ऑफ फंक्शंस फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन, दैट इज फॉर a particular function a particular part of the cortex plays a more important role. यानी कि दिस इज़ ट्रू कि कुछ चीज़ों के लिए लोकलाइजेशन होता है ब्रेन में, यानी कि किसी फंक्शन के लिए कोई एक पर्टिकुलर ब्रेन का पार्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. लेकिन इट इज़ ट्रू कि आपका पूरा ब्रेन एक साथ एक वेल कोऑर्डिनेटेड टीम की तरह काम करता है, इसलिए हम कोई भी काम कर पाते हैं क्योंकि एक ही काम में बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं. ठीक है. सो फॉर एग्ज़ाम्पल, हाँ सही बात है कि देखने के लिए आपको ब्रेन का कोई एक पार्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा और मोटर फंक्शंस के लिए ब्रेन का कोई दूसरा पार्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा. लेकिन आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको देखना भी है और आपको रास्ते भी याद करने हैं और आपको हाथ पैर से स्टेयरिंग, गियर, ब्रेक, एक्सीलेटर भी दबाना है. सो आपके मोटर फंक्शंस भी हो रहे हैं. सो कोई भी काम करने के लिए सारी चीज़ें साथ में वर्क कर रही हैं. अब आपकी सेरेब्रल कॉर्टेक्स की 4 लोब्स होती हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑसिपिटल लोब. फ्रंटल लोब में यूजुअली आपका स्मेल, स्पीच, कॉन्सेंट्रेशन, प्लानिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग जितनी भी आपकी होती है, डिसीजन मेकिंग एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें फ्रंटल लोब कंट्रोल करता है. आपके मोटर कंट्रोल भी फ्रंटल लोब से है. उसके बाद पैराइटल लोब. पैराइटल लोब is this yellow part of your brain. It controls your touch and pressure, your taste and your body's awareness. Then we have the temporal lobe का part, which is this dark green structure. इससे आपका लैंग्वेज, रीडिंग, हियरिंग और फेशियल रिकग्निशन, ये 4 चीज़ें कंट्रोल होती हैं. देन कम्स दिस लाइट ग्रीन पार्ट.
दिस इज योर ऑसिपिटल लोब एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर विजन. सबसे नीचे ये सेरिबेलम का पार्ट है जो कि आपको आपकी सारे ब्रेन के पार्ट्स में कोऑर्डिनेशन, बॉडी कोऑर्डिनेशन, इन सब चीज़ों का काम करता है. With this we have discussed brain and its basis of behavior.